Our discussion regarding the convolution of two sequences, and the convolution we discussed in previous classes was actually known as linear convolution, and today we are going to discuss the circular convolution or periodic convolution. So what are the difference between the circular and linear convolution, and where we can use circular convolution, not linear convolution? So let's start with the linear convolution example, and then we will moving towards circular convolution. So this is another example of linear convolution. I'm just zooming it. This is another example of linear convolution. I have not started circular convolution yet, but एक example को discuss कर लेते हैं, then we are moving towards a circular convolution. So we have two sequences are there, 1 2 3 1, and other one is hn, that is 1 1 1. So the length of this sequence is 4 and the length of this sequence is 3. So how many samples should be there after convolution? So it can be easily found by using this expression, L plus 1 minus m. If you add these two, 4 plus 3 7 and minus 1 6, the total number of samples will be calculated after doing the after performing convolution are 6. So we can counter check it, but let's start the procedure. So for n equal to 0, what will be this expression? Acha, how many methods we have discussed in last class? One method is a tabular method and other method is an analytical method. So if it is required to calculate the convolution by using tabular method, then you have to perform accordingly. Otherwise it is up to your choice, either you are performing analytical method or you are performing the tabular method. It's up to you. So therefore I have mentioned both methods here. This is something like tabular and this is analytical. एनालिटिकल में बेसिकली डिफरेंस ये होगा कि आपको जो है ना, इसी एक्सप्रेशन को आपने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आप देखते हैं कि कहाँ तक जाके जो है ना ये ओवरलैपिंग ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद आपको फर्दर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसको n इक्वल टू 0 के लिए एक्सपेंड किया है, n इक्वल टू यानी इस एक्सप्रेशन को मैंने n इक्वल टू 0 के लिए, यानी इस वाले की अगर मैं बात करूँ, जस्ट लेट मी क्लियर दिस। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं n इक्वल टू 0 प्लेस कर दूँ तो ये एक्सप्रेशन इस तरह का कुछ हो जाएगा। Now if I expand this expression, so as you can see k is from minus infinity to plus infinity, so obviously it will be dot 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 is mentioned here, and from, as you can see, our sequence is starting from 0, so therefore I will start it from 0. So x of 0, h of 0 is there because k is 0 over here, and similarly next value will be what? Next value will be h of 1 and k h of minus 1. ये समझ में आ रही है बातें? ये जो मैंने जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये स्टेप्स समझ में आ रहा है? ये कैसे आ रही है एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो इनकी जब प्रोडक्ट हम लेंगे, हमें पता है कि h ऑफ 0 क्या है, h ऑफ 0 1 है, और x ऑफ 0 क्या है, 1 है। दोनों x ऑफ 0 h ऑफ 1 है, तो 1 into 1 will be 1, and all other products are going to 0 and 1, and if we add these all products you will get the result 1. अब यहाँ पर जो मैं ये सारी चीज़ मैंने जो है ना इसको जो है टेबुलर फॉर्म में किया हुआ है, तो बोथ मेथड्स आर, आई एम सॉल्विंग बोथ मेथड्स पैरेलली, तो जो भी आपको सही लगे तो उससे आप इसको कर सकते हैं। क्लियर?
सर ये जो ऊपर हमने n की वैल्यू निकाली है 6l प्लस m माइनस 1, जी जी जी। सर ये 6 तक मतलब हम n की वैल्यू रखेंगे और फिर कितने सैंपल आएंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे? नहीं देखो, होता ये है कि हाँ, एन की वैल्यू हम 0 से लेकर 5 तक जाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर 5 तक। तो अगर आप ये कैलकुलेट नहीं भी करते हैं ना, अगर सपोज करो कि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो जब आप y इक्वल एन इक्वल टू आप 6 लिखोगे ना, सारी की सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है ना? तो आपने सही पॉइंट आउट किया है कि जब एन एन इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो ये हमें एक रेंज पता चल जाती है कि 0 से लेकर 5 तक चले जाएंगे। अच्छा, n इक्वल टू 1 के लिए इसको हमने सॉल्व किया। जब n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किया तो ऑब्वियसली ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगेन वी हैव टू लुक दिस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। एंड वी हैव टू परफॉर्म द सेम प्रोसीजर, h ऑफ x ऑफ 0, जब k की वैल्यू 0 होगी तो h ऑफ 1 माइनस के क्या हो जाएगा, h ऑफ 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये सारे प्रोसीजर इस तरह रिपीट होता जाएगा। और फिर अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम यही काम कर रहे हैं। ये भी 3 है। I hope everyone now understand the procedure कि how conventionally we are how we can calculate convolution जो है ना by conventional method. We are not using any kind of सर transform over there. जी जी बोले। सर ये h ऑफ -1 h ऑफ -2 ये तो हमें गिवन है ही नहीं, तो फिर किस तरह से निकालेंगे? h of -1 सर, -1 -2 -3। -1 हमें गिवन नहीं है। सर नहीं गिवन ना। देखो, हमने सबसे पहले ये अंडरस्टूड किया था कि जब भी हम यहाँ पर कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम हम फोल्डिंग का करते हैं, एक सीक्वेंस को ना फ्लिप करते हैं। सर वो तो टेबल वाले मेथड में करते हैं ना, एनालिटिकल मेथड में भी यही करेंगे। हाँ देखो, जब टेबल वाला मेथड है या एनालिटिकल मेथड है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड जो है, जो आपके पास जो मेन एक्सप्रेशन है, वो तो वही है ना। ये तो अप्रोचेज है ना। अब मैं इस एग्जांपल की आखिर में एक और अप्रोच बताऊंगा, वो एक ही स्टेप में सारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो अभी जो है ना उस पर हम आएंगे। लेकिन ये है कि अब एक सीक्वेंस को जो है, जिस तरह एच एन की सीक्वेंस को तो हमें फोल्ड करना पड़ेगा ना। आप खुद ही सोचें, जिस तरह अभी आपने कहा कि सर एच ऑफ -1 क्या है, एच ऑफ -1 तो कुछ है ही नहीं। इस केस में एच ऑफ -1 तो कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, मैं यही कह रहा था कि हाँ 0 लिख देंगे फिर। जी जी जी। इसको अगर अगर वैल्यू नहीं है तो हम 0 मेंशन कर देंगे, अगर वो वैल्यू आ रही है तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। जिस तरह देखें ना, यहाँ पर एच ऑफ -k मेंशन किया हुआ है। जब एच ऑफ -k किया हुआ है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर वो चीज़ फोल्ड तो करनी पड़ेगी ना। ओके सर, ठीक। ठीक है। अब n इक्वल टू 2 के लिए भी वही हम सेम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। ये क्लियर है सबको? बाकी स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूं तो अगर मेरी आवाज़ आ रही है और आप क्लियर है ये, या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके। तो सिमिलरली एट n इक्वल टू 2, at n equal to 2, what will we get here? We will get this y2 equal to 6, 1 2। ये असल में यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 3 होगा। 3 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा
6 के। अच्छा, n इक्वल टू 3 के लिए अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ मैंने जो है ना थोड़ा सा शॉर्टकट किया है। आपको इसको एक्सपेंड करोगे, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा, और अगर हम टेबुलर से कर रहे हैं तो फिर भी ये सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ऑब्वियसली सेम ही आएगा, बट इसको जो हमने कटेड शॉर्ट किया है मैंने n इक्वल टू 4 के लिए, यू कैन सी कि जो सीक्वेंस है वो मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है सीक्वेंस। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखते हैं y इक्वल टू 5 के लिए आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ भी आपके पास 1 आ रहा है। अब अगर आप देखते हैं कि अब यहाँ पर तो हमें स्टॉप कर देना है ना, ठीक है ना, हमें पता चल गया कि 0 से लेकर 5 तक हमें द रेंज ऑफ दिस कन्वोल्यूशन सम इज फ्रॉम 0 to 5, टोटल नंबर ऑफ सैंपल विल बी 6। सो इफ mistakenly you taking n equal to 6, you will get nothing because there is no any overlapping over here। तो इसको अगर आप एक यूनिट इस सीक्वेंस में अगर आप थोड़ा एक सैंपल और मूव करेंगे तो नथिंग विल बी देयर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो देयरफॉर यू शुड स्टॉप हियर at y equal at n equal to 5, and this is your result। Clear? यस सर। यस सर, क्लियर। ओके, अब इसका एक और सिंप्लीफाइड मेथड है, इसको भी टेबुलर मेथड ही कहा जाता है, लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाइड है, लेकिन इसको काउंटर चेक के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब ये एक सबसे शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये शॉर्टकट तभी पता चलता है जब हम जिस तरह अभी हम कन्वेंशनली इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये बड़ा शॉर्टकट लगेगा। अब इसमें हम करते क्या है कि वही सीक्वेंस मैंने लिखी है, वही सीक्वेंस मैंने लिखी है यहाँ पर। ये xn की सीक्वेंस है और ये hn की सीक्वेंस है। ये दोनों सीक्वेंसेस मैंने लिखी हैं यहाँ पर। अब आपको करना ये है कि इस सीक्वेंस को, जिस तरह इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको आपको इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको पूरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सेम आ जाएगा। अब देखें, सेकेंड स्टेप में आपने इसको पूरी रो से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। इसी तरह जब आपने इसको किया तो अगेन आपके पास, क्योंकि सारे एलिमेंट्स 1 है, तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये सीक्वेंस आपके पास आ गई, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेक्शन वाइज इसको ब्रेक कर देंगे। इस तरह हम इसको ब्रेक करेंगे। और जितने भी हम इसको जो ब्रेक कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं उनको आप ऐड कर देंगे। जिस तरह इसमें सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है तो ये आपके पास 1 आ गया। इसमें 2 आ रहे हैं तो ये आपके पास 2 + 1 3, 1 + 2 3, it will be equal to 6। Again this will be equal to 6, this will be equal to 4, and this will be equal to 1 again। क्लियर? जी सर, यस सर, क्लियर। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें ओरिजिन कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? ओरिजिन कैसे आइडेंटिफाई होगा इसमें? Yes, how can we identify the origin?
Only 17 students are there. आज मुझे शेड्यूल आ गया था व्हाट्सएप पे, आपको भी शेयर हो गया होगा ग्रुप पे। सर हमारा तो नहीं आया। का नहीं। जी जी, जो आपसे पहले वाला ग्रुप है उसका आया है ना, मतलब फर्स्ट और उसका 19 फाल का आया ना। जी जी जी। तो उनका मेरे ख्याल में 20 तक जो है ना वो एंड हो रहा है ना, 21 तक एंड हो रहा है जहाँ तक वाई जहाँ तक आ रहे हैं मेरे पास। तो आपके कब से स्टार्ट होंगे एग्जाम? सर 21 से कह रहे सर हैं। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हाँ हमारा। जी जी, क्योंकि 19 तक तो ये चल रहे हैं ना सारे, लेकिन 22 पे भी इनका एक पेपर तो है मेरे ख्याल 22। डेफिनेटली इसके बाद ही आपके होंगे, इट इज अंडरस्टूड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसका ओरिजिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस, सीट नंबर 01। 14। इसका ओरिजिन फाइंड करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आपको ये देखना है कि जब क्वेश्चन में जो गिवन था, क्वेश्चन में गिवन जो था वो यहाँ पे ओरिजिन था, यानी इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर ओरिजिन था इसका, और इस वाली सीक्वेंस का यहाँ पर ओरिजिन था। अगर आप क्वेश्चन में देखें, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें कि इसका ओरिजिन यहाँ पर था, xn1 पे था और hn1 पे था। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो अब आपको करना ये है कि इनका इंटरसेक्शन बनाना है। इनका इंटरसेक्शन जो बनेगा वो ये बनेगा इंटरसेक्शन। तो ये आपका जो आपके पास अब यहाँ पर जो है आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट होते तो इसका जो सम आता वो आपका ओरिजिन बन जाता। तो दिस विल बी योर ओरिजिन। तो अगर आप इस इंटरसेक्शन को देखते हैं तो ये आपके पास ओरिजिन आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ओरिजिन ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका ओरिजिन जो है वो ये है, इस सीक्वेंस का ओरिजिन ये है, और एक्सएन का ओरिजिन जो है लेट सपोज के आपके पास ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो बनेगा वो ये बनेगा। तो आपका ओरिजिन कहाँ पे होगा? सर 4 पे। आपका ओरिजिन होगा 3 + 2 1 6 पे होगा, इस 6 पे होगा। सर दोबारा रिपीट करें ये वाली बात। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि ओरिजिन आपका सीक्वेंस में कहाँ गिवन है। अब मैं एक सपोज कर रहा हूँ, एक्चुअली तो ये 1 1 पे था। अगर आपका एच एन का ओरिजिन अगर यहाँ पे गिवन है और एक्स एन का ओरिजिन अगर यहाँ पे गिवन है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। यही हुआ ना? यस सर। ठीक है। अब आपको देखना है इस पूरे जो हमने इसको पूरे एरिया का सम कितना है। सम सर कितना है 6। इसका? 6 6 सर है। 6। तो इस वजह से मैंने 6 पे ओरिजिन किया। क्लियर? यस सर यस। यानी ये मैं एक एक्स्ट्रा आपको एक केस बता रहा हूँ कि अगर किसी केस में इस तरह होता है कि ओरिजिन आपके पास इस तरह आ रहा होता है जिसमें बीच में आपके पास ओरिजिन है या दोनों के ओरिजिन अलाइन नहीं है, तो उस केस में आपको ओरिजिन आइडेंटिफाई करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में ये जो है ना हेल्प आउट करेगा मेथड आपको।
लेट्स से कि अगर ओरिजिन यहाँ पर है, इसका इस सीक्वेंस का xn का ओरिजिन यहाँ पर है और इसका ओरिजिन यहाँ पर है, तो उस केस में आपके पास कहाँ पर ओरिजिन एग्जिस्ट करेगा? सर लास्ट में जो 1 है यानी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप 6 बनाते हैं होगा। तो ये बनेगा जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनेगा, तो इट मीन्स के वी हैव टू टेक दिस होल पोर्शन, तो ये वाला 6 हो जाएगा। सही है? यस सर। अब क्लियर है? यस 04 क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सर्कुलर कन्वोल्यूशन और पीरियोडिक कन्वोल्यूशन। सर्कुलर कन्वोल्यूशन या पीरियोडिक कन्वोल्यूशन में बेसिकली एक कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो सीक्वेंसेस हैं उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कंडीशन है। सो दीज आर द कंडीशंस टू परफॉर्म सर्कुलर कन्वोल्यूशन। What are the conditions? The first condition is both signals are periodic। ठीक है, both signals periodic होने चाहिए, एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो वी कैन नॉट अप्लाई सर्कुलर कन्वोल्यूशन। So in order to apply a circular convolution when both sequences are unequal, then we have to perform some technique which is considered as a zero padding। तो zero padding हम करते हैं, we will discuss in later classes। So for now you can understand that circular convolution is used for periodic signal and signal must be periodic, and other condition is what? Other condition, both signal must have equal number of samples। So taking this example over here, we have two sequences 1122 and 1234। so if we are taking two sequences over there, now circular convolution can be performed by two methods। number one method is concentric circle method, this is number one method, and other one is tabular methods or matrix method we are saying। so let's start with the concentric circle method। this is concentric circle method। what is the meaning of concentric? You can see over here circle having same center, which is considered as a concentric। so let's start। step one is what? step one is xn और hn के हमें सर्किल बनाने हैं। एक सर्किल हमने बनाया जिसमें हमने xn लिखा, जिसको हमने जो है ना इस x नॉट यहाँ मेंशन किया। इफ वी आर मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज, so this arrow indicates counter clockwise, this will be x1, this will be x2, this will be x3। similarly if you are having another sequence over there, then again you are taking the same direction। h of 0 is here, h of 1 is there, h of 2 is there, and h of 3 is there। this sequence is hn and this sequence is xn। clear? यस सर। यस सर क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इस सीक्वेंस को, जो आपके पास hn की सीक्वेंस है, उसको हम जो है वो
उसका मिरर इमेज ले देंगे। मिरर द सीक्वेंस का मतलब है कि उसको हम फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड हम किस तरह कर रहे हैं कि हम उसको वर्टिकली फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना उसको जिस तरह मिरर द सीक्वेंस, मिरर द सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मिरर है तो उसको जब आप वर्टिकली फोल्ड करते हैं तो आपके पास जो उसकी जो सैंपल्स जो होंगे उसकी जो पोजीशंस होगी वो कुछ इस तरह होगी। देखिए यहाँ पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। H0 अपनी जगह पर है, H2 अपनी जगह पर है, यू कैन सी ओवर हेयर, दोनों अपनी जगह पर है। बट चेंजिंग कहाँ पर आई है, ये जो पोर्शन है ये फ्लिप हो गया है। H3 ऊपर आ गया और H1 नीचे आ गया, यू कैन सी ओवर हेयर। तो दिस इज हाउ यू फ्लिप दैट सीक्वेंस। वर्टिकली आपको इसको फ्लिप करना है। ये बात समझ में आई किस तरह हमने इसको फ्लिप करना है, कि इसको इस तरह वर्टिकली फ्लिप करना है ताकि जो है ना आपके पास जो वर्टिकल पे जो आपके पास सीक्वेंस सैंपल्स मौजूद हैं, जिस तरह इन HN वी हैव H1 ऑन द टॉप ऑफ साइड and H3 on downward side. So if you flip it, you will get H3 on the top and H1 on the bottom side. Clear? Yes, sir. Now what we have to do, we have to कोसेंट्रिक इट। कोसेंट्रिक का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों सर्किल को एक साथ ड्रॉ करना है और एक सर्किल को आप फिक्स रखेंगे और दूसरे सर्किल जो है, जो इनर सर्किल है, उसको आप मूव करेंगे। जिस तरह ये वाला सर्किल जो है ये आपके पास एक्स वाला सर्किल है, ये मैंने एज इट इज़ बनाया है। अगर आप इसको यहाँ पर देखें, ये सर्किल मैंने इसको एज इट इज़ बनाया है। आपके पास सर एक्स जूम कर दें आप। जी जी, मैं जूम करता हूँ। अब देखें ये सर्किल मैंने एक्स वाला सर्किल बनाया है और यहाँ पर जो इनर सर्किल है ये वही सर्किल है जो कि हमने एच वाला सर्किल है। ये मैंने दो सर्किल बनाए और इनकी पोजीशन मैंने, यानी मैंने कौन कौन से सर्किल लिए हैं, एक मैंने ये सर्किल लिया है नंबर 1 और दूसरा मैंने ये सर्किल लिया है जो कि मैंने फ्लिप किया हुआ है। अब इन दोनों सर्किल को मैंने इस सर्किल को मैंने इनर सर्किल बनाया है और इसको मैंने आउटर सर्किल बनाया है। क्लियर? यस, क्लियर? यस सर क्लियर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी टू परफॉर्म सेम ऑपरेशंस जिस तरह हम करते हैं हुए आ रहे हैं कि आपको जिस तरह इसको जो है यहाँ पर आप अगर पहली सीक्वेंस को देखते हैं, ये h ऑफ 0 है, ये x ऑफ 0 है, इसको आपने यहाँ पर हाईलाइट किया, मतलब इसको सर्किल इसको हाईलाइट किया। इन दोनों की जो वैल्यूज हैं इनको आपने मल्टीप्लाई किया। 0 भी 1 है और x ऑफ 0 भी 1 है तो आपने इसको 1 प्लेस कर दिया। इसी तरह यहाँ पर x ऑफ 1 है, h ऑफ 1 है, ये आपके पास 1 है और 4 इक्वल टू 4। इसको मैं जूम करता हूँ अभी, और ये 2 है, ये 3 will be 6, this one is 2, this one it will be 2 into 2 4. Over here align the circle and multiply the samples accordingly according to their position, and ultimately what you have to do, you have to perform the addition. Once you elements, you will get the result 15, and this is what, this is y0 equal to 15. But why we have mentioned y of 0, because here we are not having any kind of movement over there. यदि starting point है, आप 0 से start कर रहे हैं तो y0 equal to 15. क्लियर? सर रिपीट कर दें एक बार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने सर्किल को कोसेंट्रिक
की फॉर्म में लिखा, यानी एक ही फॉर्म में, यानी यानी एक ही पॉइंट पर हमने दो सर्किल बनाए, एक का हमने जो है रेडियस छोटा रखा है, एक का बड़ा रखा है। अब जो इनर सर्किल है, ये जो इनर सर्किल है आपके पास, इनर सर्किल में जो आपके पास एलिमेंट है, जो जो जिस पोजीशन पे, जिस तरह ये h(0) है और ये x(0) है, इसको आपने हाईलाइट कर दिया। ये मैंने सिंपली हाईलाइट किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह हाईलाइट करें, ये सिंपली इसको जो है आसानी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह h(0) है और x(0) है, इन दोनों के एलिमेंट जो आपके पास सैंपल्स आ रहे हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1। इसके बाद because you are moving counterclockwise, if you are moving counterclockwise, what will be जो है what will be the second sample, it will be x(1). similarly यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 into 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 into 1 अगेन आपके पास 4 आ गया। यहाँ पर x(2) और h(2) it will be 2 into 3, 6 आ गया। और अगेन यहाँ पर 2 into 2, 4 आ गया। तो जब आपके पास ये सारी चार वैल्यूज आ गई, देन व्हाट यू हैव टू डू टू ऐड ऑल दीज वैल्यूज। तो वंस यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट द फर्स्ट सैंपल ऑफ द सर्कुलर कन्वोल्यूशन सम। क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम सेकेंड इसके जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है, अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या किया है कि जो ये इनर सर्किल है, जो इनर सर्किल है, इसको हम जो है ना रोटेट कर रहे हैं। अब इसको जो रोटेट कर रहे हैं, तो इसको रोटेट जो है हम क्या कर रहे हैं कि अब देखें कि यहाँ पर इसको अगर आप कंपेयर करें तो ये h(1) है, h(0) है, x(3) और ये, इसको हमने रोटेट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक सैंपल रोटेट किया है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। इस सारे को मैं क्लियर कर देता हूँ, देने के लिए। अब ये एक्चुअल हमारे पास जो है ना, ये आपके पास एच वाला सर्किल है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर, इसको अगर मैं रोटेट करूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको अगर मैं रोटेट करूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक यूनिट, यानी एक सैंपल अगर मैं इसको एक मर्तबा में रोटेट करता हूँ, तो पोजीशंस क्या क्या हो जाएंगी। h(0) पे क्या आ जाएगा, सर h(3) आएगा। h(3) आएगा। क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करेंगे। h(1) आएगा ना, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको मैं जूम करता हूँ, देखें सर इसको वो तो अगर मैं, एंटी क्लॉक होगा ना। इसको अगर मैं, एक मिनट, शायद मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ कि हाँ एंटी क्लॉक है, दिस इज एंटी क्लॉक ना। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं कि एंटी क्लॉक है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ और एक सैंपल मूव कर रहा हूँ, तो क्या पोजीशन बनेगी। आई शुड से एंटी क्लॉक इंस्टेड ऑफ क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँगा, दिस इज एंटी क्लॉक, तो आपके पास h(0) की जगह पे क्या आ जाएगा, h(1) h(1) आ जाएगा। और h(3) की जगह पे क्या आएगा, h(0) आएगा। h(0) आ जाएगा। और h(2) की जगह पर h(3) 3 आ जाएगा। और यहाँ पर h(2) आ जाएगा। यही पोजीशन होगी ना, अगर मैं इसको एक मर्तबा, एक यानी एक जो है सैंपल जो है रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है ये सबको कि मैं इसको रोटेट किस तरह कर रहा हूँ। यस सर, क्लियर है। तो जब मैंने इसको रोटेट किया तो आपके पास ये आपके पास पोजीशन आ गई।
आपके पास ये पोजीशन आ गई। पोजीशन में आपके पास अगेन आपको वही सेम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं कि आपको जो है इनकी पोजीशंस को हाईलाइट करके, जिस तरह 2 into 1 2 आ गया, इस तरह ये 1 आ गया, ये 8 आ गया और ये 6 आ गया। तो इन सबको जब आप ऐड करते हैं यू विल गेट 70। क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब मुझे जो है एक स्टेप और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करें, मतलब हमें कितनी और करेंगे तो, यानी अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो फिर H3 आ जाएगा एंड अगेन आपके पास यानी यू हैव टू परफॉर्म इट प्लेसेस 3 प्लेसेस, यानी 0 to 3 प्लेसेस। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको ज़रा जो है ना मैं जूम करता हूँ, मुझे आप जो है ना इसकी जो है सेकेंड और थर्ड मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं। एक यूनिट और रोटेट हो, फिर आपको यही चीज़ें परफॉर्म करनी है। यस 36 हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा सर। बाकी हाँ, हमारी मर्जी है अभी कि हम कर इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें या क्लॉकवाइज। होता ये, असल में होता ये कि आपको जो है ना ये शुरू में डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब यानी एक मरतबा आपने डिसाइड कर दिया तो फिर आपको वही फॉलो करना है। सर मेरा इमेज में तो हम सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, पर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। उसके जी बाद फिर जी सर जी हम रोटेट कर रहे हैं उसे। जी, रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेट करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, उसको ऐड कर रहे हैं। काम वही हो रहा है जो कि एक कन्वेंशनल एक सिंपल कन्वोल्यूशन में होता है, लेकिन ये सर्कुलर मेथड में हो रहा है। अब क्योंकि ये सर्कुलर मेथड है, इसको फिर आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा ना। अब देखो ना, आपने अगर 3 स्पेसिस तक आपने कर लिया तो उसके बाद आप फॉर्मुलेशन, सही है ना? सर 36 आपकी आर यू आवाज लिसनिंग? कट गई थी बीच में। सर आपकी आवाज अच्छा बीच में कट गई, समझ में। जी, मैं अब आ रही है मेरी आवाज? अब यस आवाज सर, आ रही है सही है। मेरी? हाँ, यस सर, आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस की वैल्यूज जो है ना आप कैलकुलेट करें। अब आप जो कह रहे हैं ना डायरेक्शन का, तो अब देखो ना, अब तीन मरतबा जब आपने इसको रोटेट किया, जब चौथी मरतबा इसको रोटेट करेंगे तो उसमें आपके पास बेसिकली क्या होगा, वही सेम वैल्यूज तो आ जाएंगी। यस सर, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जी, आ जाएगा। वापस अपने उसी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। So that is why we are saying कि circular convolution is also considered as a periodic convolution, because वो अपनी जो है ना एक खास पॉइंट के बाद अपना पैटर्न रिपीट करता ही रहेगा। लेकिन सर फिर वो सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगी उससे। सीक्वेंस नहीं, ये तो आपको शुरू में डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप अगर आप एक को देखो ना, आपको दोनों की डायरेक्शन क्या लेनी है। जिस तरह यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ, ये डायरेक्शन ये वाली है ना, और यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ।
अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप इसको है ना, एक अंदर वाले को क्लॉकवाइज कर लो, उसको एंटी क्लॉकवाइज कर लो। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ। सही है सर, मतलब अपोजिट होनी चाहिए दोनों। अपोजिट होना। ठीक है। अच्छा, तो वैल्यूज आप कंफर्म कीजिएगा। ये वैल्यूज मैंने इसकी 15 आनी चाहिए और इसकी 13 आनी चाहिए। तो मैं प्रैक्टिस के लिए कह रहा था, अगर आप इसको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे जो है ना हो रहा है। अटेंडेंस बहुत कम है, क्या बात है? यस 70, अटेंडेंस बहुत कम है। ट्वेंटी 27 स्टूडेंट्स हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ यस रही सर, आ रही है आपकी ये क्लियर है? आवाज। यस सर, क्लियर है, सही आ रहा है। 15 और 13 यस आ रहा सर, क्लियर है। 15 और 13 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह ये h -n+1 है, ये h-n+1 मैंने दोबारा लिख दिया है। ये क्या होना चाहिए? h-n+2 होना चाहिए ना। ये 2 है और ये आपके पास 3 होना चाहिए। ये में मेंशन किया गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने इसको कितना रोटेट किया हुआ है ना। अब आप ये काम ये कीजिएगा, आप सारे स्टूडेंट्स जो है एक काम ये कीजिएगा कि जिस तरह नेक्स्ट क्लास जो हम कर लेंगे क्लास, तो उसमें जो है ना आप इन दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिएगा और फिर आंसर चेक करवाइएगा मुझे कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। समझ में आ रही है बात? कि आपने इसको जो है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेना है और इसको क्लॉकवाइज लेना है। तो उसको मुझे बताइएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है? ठीक है सर। एनी क्वेश्चन? सर यहाँ पे हम नो सर। एक्स को फिक्स रख रहे हैं ना सर। एक सर्कल तो हमारे पास फिक्स है और दूसरा सर्कल हम जी घुमा जी, रहे हैं। हाँ सर्किल फिक्स तो है, लेकिन उसमें सैंपल्स की पोजीशन हम किस तरह लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर सर हमें दोनों सर्कल को हम रोटेट करेंगे तो उससे तो काफ़ी डिफरेंस आएगा ना। क्या कह रहे हैं? सर अगर हम दोनों सर्कल को रोटेट करेंगे तो उसमें तो काफ़ी डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसमें तो हम नहीं, एक सर्कल को फिक्स रख रहे हैं और एक। दोनों सर्किल को तो रोटेट करना ही नहीं है ना। एक सर्किल को, इनर सर्किल को हमेशा हम रोटेट करेंगे, ओके सर। लेकिन वो जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है एच एन वाले सर्किल की, तो आप जो है ना वो क्लॉकवाइज ले लें। अब अगर आप दोनों की डायरेक्शन को कंपेयर करेंगे ना, आउटर सर्किल की और इनर सर्किल की डायरेक्शन कंपेयर करेंगे, तो आपको ये अपोजिट नजर आएंगी। तो अभी करंटली जिस तरह मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्शन कुछ इस तरह है। मैं सर्किल कर रहा हूँ, वो डायरेक्शन ये है एक्चुअली। सॉरी, ये डायरेक्शन नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ करना है आपको ना। करंटली जो डायरेक्शन है वो क्या है? करंटली डायरेक्शन इन दोनों की आपके पास जो है मूवमेंट जो हो रही है, अगर हाँ इस क्वेश्चन में आप देखें कि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है। अब क्योंकि जब मैंने इसके बाद इसको फ्लिप कर दिया तो फिर इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो आपको करना ये है कि ये अपोजिट लेके देख लेना, ये इस तरह करके देख लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सही है?
यस सर। तो ये कल वाली क्लास में करके आइएगा, तो यानी हमें डिफरेंस पता चले कि क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए कोई डिफरेंस, क्योंकि जब हम दोनों की डायरेक्शन एक ले रहे हैं फिर उसको फ्लिप करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन फिर भी आप चेक कीजिएगा इसको कि क्या डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? सर इसमें ओरिजिन नहीं होगा? देखो इसमें होता ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन में कि आपके पास जो ओरिजिन होता है आप ओरिजिन मेंशन करते ही नहीं, क्योंकि सर्कुलर होता है ना, इस वजह से आप कहीं भी जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे ना, सर्कुलर कन्वोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें कहीं भी ओरिजिन मेंशन नहीं हुआ होता। ठीक है सर। तो इट इज अंडरस्टूड कि फर्स्ट डिजिट इज एन ओरिजिन। Yes, any other question?